Good morning, everyone. Previous class we discussed. What did we discuss? So we discussed leadership. Leadership. We discussed meaning of leadership, features of leadership. We discussed importance of leadership. We discussed various leadership styles. What are the three main leadership styles? Sir, autocratic. Yes. So there was a balanced way, and also there was a way in which you Second is allow democratic. your employees to do everything. First is autocratic, dictatorship. Second is democratic, Yes, sir. consulting everyone, discussing with everyone, then deciding. And third was laissez-faire, or we call it free rein, means giving full freedom to the subordinates. The superior himself or herself does not do much. Which one is the best? Sir, democratic. Yes, democratic. In most of the situations, democratic style is the best. We should use that. Means we should involve our team members in discussions, in while taking decisions, and we should take suggestions and opinions from everyone. Okay, now we move on to next element, or rather I shall say the fourth element. Three we have discussed. Which three have we discussed till now? Elements of directing. First one was supervision. Second was motivation. Third one was So थर्ड तो leadership. कल ही किया है, थर्ड तो लीडरशिप. Leadership. ठीक है. Leadership. Now yes, now only one element is left, that is communication. ठीक है, that we will discuss today. Okay, what do we mean by this term communication? Sir, it's the process of sharing information, ideas, Yes, facts. yes, very good. The term communication is derived from the Latin word communis. Communis means common. So, to make something common, to make what common? Our ideas, our views, our feeling, making that common with others is communication. So basically, communication means the exchange of messages, facts, ideas, opinions, or emotions between two or more persons to create a common ground of understanding through some common medium. Clear? Yes, sir. So from this definition, what features of communication emerge? First is communication involves at least two persons, one sender and one receiver. At least two people should be there. Then communication can take place. There is no maximum limit. There may be any maximum number of people in communication. Okay. Then second is communication is pervasive. Pervasive means? Sir, it's everywhere. It's everywhere. It's required everywhere. In all the organizations, all types of organizations, in all departments of an organization, at all levels of in an organization. So communication is required everywhere. Now, third feature is very important. Understanding of the message is as important as exchanging it. Mere exchanging the message or passing on the message is not sufficient. Most important is understanding the message by the receiver. ठीक है, आपने अपनी बात कह दी लेकिन अगर सामने वाले को समझ नहीं आई, then no communication has taken place.
कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाले को बात समझ में भी आए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग बस अपनी बात कहने में इंटरेस्टेड रहते हैं without bothering whether the recipients have understood that message or not, whether they have understood whatever has been told or not. कोई सुन भी रहा है या नहीं उस पर भी ध्यान नहीं देते, बस बोलते जाते हैं। तो दैट इज बैड कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? मैं ये जो कुछ बोल रहा हूं किस लिए बोल रहा हूं? सो दैट you understand the concept of communication properly. अगर वो ही समझ में नहीं आया तो ये कम्युनिकेशन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं और सेम टाइम पे मैं भी बोल रहा हूं तो मोस्टली लोगों को कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। सो अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ मैसेज इज गिवन बाय द सेंडर एंड आल्सो रिसीव्ड बाय द रिसीवर, but receiver is not able to understand, then communication has not taken place. बहुत बार हम सोचते हैं हमने अपनी बात कह दी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। नहीं, जब तक सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आई तब तक कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। और इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं सामने वाले को, वो हमें कैसे पता चलेगा? So by testing him. From feedback. ठीक है, मैं हर दो तीन स्टेप्स के बाद या पॉइंट्स के बाद या कई बार हर पॉइंट के बाद आपसे पूछता हूं, इज इट क्लियर? क्या पर्पस है मेरे पूछने का? टू गेट अ फीडबैक। ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया है तो देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हम करते हैं, क्लासरूम टीचिंग सपोज हो रही है, वहां पर भी ये फीडबैक मिल रहा होता है। वहां पे भी बार बार टीचर पूछते हैं, इज इट क्लियर, एनी डाउट? और अगर कोई स्टूडेंट को डाउट होता है वो पूछते हैं तो फिर उसे क्लैरिफाई किया जाता है उस डाउट को, देन द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, प्लस अगर कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है तो भी जब आप किसी से बात कर रहे हो इन अ फेस टू फेस सिचुएशन, बहुत नेचुरल सी टेंडेंसी होती है, जब हमें कोई चीज समझ में आ रही होती है तो हमारा सिर नॉड हो रहा होता है यस के जेस्चर में। ठीक है, वो नेचुरल है। तो बिना कुछ कहे भी ये फीडबैक मिल रहा होता है नेचुरली। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं, वो एक अलग बात है। अगर प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली अपने आप ये फीडबैक जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, सो फीडबैक इज एसेंशियल टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। जब भी आप कोई मैसेज किसी को दो, किसी को कोई बात कहो, तो हमेशा फीडबैक लेना चाहिए कि भाई आपने सुन लिया है, आपको समझ आ गया है या नहीं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सेंडर ये सोचता रहे कि मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया और रिसीवर को वो बात समझ में ही नहीं आई। So it is very important to take feedback. Similarly, whenever you are the receiver, किसी ने आपको कोई मैसेज पास ऑन किया है, आपको कुछ कहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीडबैक देना। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो यू शुड रिस्पॉन्ड कि यस आई हैव अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आई है, यू शुड इमीडिएटली क्लैरिफाई योर डाउट्स। नहीं तो सामने वाला इस मिसकंसेप्शन में रहेगा कि हाँ मैंने तो अपनी बात कह दी और इसने कोई डाउट नहीं पूछे तो इसका मतलब बात समझ में आ गई है। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। सेंडर शुड टेक द फीडबैक एंड द रिसीवर शुड ऑलवेज गिव द फीडबैक। क्लियर? Yes, sir. गुड फीडबैक। कम्युनिकेशन कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। अभी कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा? Sir, person to person. मेनली ओरल एंड विजुअल। आप स्क्रीन पर पॉइंट्स पढ़ रहे हो और मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो। सो ओरल एंड रिटन ये दोनों साथ में हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैन बी ओरल बाय स्पीकिंग, इट कैन बी रिटन
when we write a letter to someone, or when we text someone, when we send an email, all that is written communication. It can also be through gestures. Okay, when we say, when we do a gesture like this means sit down, when we do a gesture like this means stand up. Okay, when we smile, it's a gesture that I am pleased with what you said or with what you did. So through gestures also communication takes place, and in fact 80% of our communication, actual communication, takes place through gestures and body language, interestingly. ठीक है, तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने जेस्चर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हमारा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू हो रहा होता है. ठीक है, और जो एक्सपर्ट होते हैं इसके बॉडी लैंग्वेज के, जेस्चर्स के, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, जेस्चर्स को देख के जज कर लेते हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज सिटिंग लाइक दिस, क्रॉस आर्म, तो बॉडी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है दैट आई एम क्लोज्ड, मतलब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मैं सिर्फ अपनी बात कहूंगा या कहूंगी, इसका ये मतलब होता है. तो ये बड़ा डोमिनेटिंग जेस्चर है, ये नहीं रखना चाहिए जनरली बातचीत करते हुए. ठीक है, योर आर्म्स शुड बी ओपन, मींस ओपन फॉर कम्युनिकेशन. ओपन मींस बाय योर साइड, if you are sitting on a chair, on its armrest, or simply your palms resting on your thighs. Features clear? Yes, sir. Now we come to elements of communication process. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं steps of communication process. First of all, there has to be a sender. For communication to begin, there must be someone who wants to convey something. ठीक है, so first element is sender. Then second element is message. Sender के mind में कोई बात आई कि मुझे अपनी ये बात communicate करनी है, convey करनी है, तो उस बात को हम कहेंगे मैसेज. द सब्जेक्ट मैटर विच इज टू बी कम्युनिकेटेड, इट कम्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स. ठीक है, देन थर्ड एलिमेंट इज एनकोडिंग. ठीक है, सपोज मेरे माइंड में एक थॉट आई कि मुझे किसी से पानी मांगना है. ठीक है, अब मुझे उस थॉट को कुछ ऐसे सिंबल्स में या जेस्चर्स में या वर्ड्स में कन्वर्ट करना है जो कि सामने वाला समझ सके. नाउ आइदर आई कैन से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और आई कैन सिंबल जेस्चर लाइक दिस, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और लाइक दिस. दीज आर द जेस्चर्स फॉर वाटर. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग, मीन्स converting the thoughts into words or gestures which can be understood by the other people. That is encoding. Now, when we are simply discussing something in a face-to-face situations, this is the first level of encoding. But suppose you are using some device, like right now I am using my laptop. So what first encoding is taking place in my mind, in my brain, where I am converting my thoughts into words which I feel will be understandable by you all. Then second level coding is being done by this laptop, electronic device, which is converting my sound, my voice into digital signals and transmitting via internet to the devices of all of you. Clear? Yes, sir. Then comes media. Media means medium. अगर हम एक रूम में बैठ के किसी के साथ बात कर रहे हैं, what is the medium through which we are communicating? So, by speaking and expressions.
Yes, speaking is the way of communication, but medium is air. अगर वैक्यूम हो उस रूम में तो किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देगी. Sound travels through air. It cannot travel in a vacuum. So air is the medium. Right now, when I am talking to you all, there are two media. First is air, through which my sound is reaching the microphone of my laptop. Then second medium is internet, which is transferring my voice from my home to homes of all my students, all of you. ठीक है, तो ये दो मीडियम हो गए अभी. जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मीडियम बन जाता है. जब हम ईमेल भेजते हैं अगेन इंटरनेट मीडियम बन जाता है. ठीक है, सो देयर कैन बी डिफरेंट मीडिया थ्रू विच द मैसेज इज पास्ड ऑन. व्हेन द मैसेज रीचेस द रिसीवर, फर्स्ट इट इज डीकोडेड. अब डीकोडिंग भी कई लेवल पे हो सकती है. अगर हम इन पर्सन आमने सामने बैठ के किसी से बात कर रहे हैं तो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, सामने वाले की ब्रेन उन वर्ड्स को वापस थॉट्स में कन्वर्ट कर रही है. जैसे ही मैंने ये जेस्चर किया वाटर का, तो सामने वाले ने की ब्रेन ने उस जेस्चर को देख के वापस उसे थॉट्स में कन्वर्ट किया कि हाँ पानी मांग रहे हैं. सो एंड डीकोडिंग इज टेकिंग प्लेस. और जब कोई डिवाइस भी इन्वॉल्व है तो फिर मल्टीपल लेवल पे डीकोडिंग हो रही है. आपके डिवाइस तक मेरी वॉइस डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट ने पहुंचा दी. अब आपकी डिवाइस पहले उस डिजिटल सिग्नल को वापस साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर रही है, और वो साउंड आप तक पहुंच रही है, आपके ईयर्स तक पहुंच रही है, आपके ईयर्स से आपकी ब्रेन तक पहुंच रही है. और आपकी ब्रेन उन वर्ड्स का मीनिंग जो मैं बोलता जा रहा हूं, जैसे ही मैं बोलता हूं ग्लास ऑफ वाटर, आपके माइंड में एक ग्लास ऑफ वाटर की इमेज इमीडिएटली बन जाती है. ये कौन कर रहा है? आपकी ब्रेन कर रही है. सो डीकोडिंग. डीकोड होकर मैसेज किसके पास पहुंच गया? रिसीवर. रिसीवर कौन है? द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड्स इट. क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. अभी मैंने पूछा क्लियर अप टू हियर, किस लिए पूछा? Sir, for feedback. वेरी गुड. टू फॉर फीडबैक, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई मेरी बात सुन ली है या नहीं, और सुन ली है तो समझ भी ली है या नहीं. अगर नहीं समझी है तो दोबारा समझाऊं. ठीक है. सो फीडबैक. विदाउट फीडबैक द कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट. तो ये डायग्राम के फॉर्म में अगर हम देखें, सेंडर ने मैसेज को फॉर्मुलेट किया, यानी सेंडर, और फिर मैसेज को एनकोड किया सिंबल्स में, फिर मीडिया के थ्रू वो पास हुआ, पास होके रिसीवर तक पहुंचने से पहले वो डीकोड हुआ, डीकोड होके रिसीवर को मिला, और रिसीवर ने फीडबैक दिया वापस सेंडर को. ठीक है. कई बार इस पूरी प्रोसेस में एक डिस्टरबेंस आ जाती है. कहीं कुछ नॉइज आ गया, कहीं कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, या any kind of disturbance that is called noise. If message is not conveyed properly because of any kind of disturbance, हो सकता है जिस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, हो सकता है एनकोडिंग गलत हो सकता है डिकोडिंग गलत हो सकता है लिसनर अटेंटिव नहीं है, हो सकता है मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया, 2-3 लोगों के थ्रू पास ऑन हुआ तो बीच में डिस्टॉर्ट हो गया मैसेज, हो सकता है जो रिसीवर है उसकी अंडरस्टैंडिंग पुअर है, कुछ भी रीजन हो सकता है. अगर प्रॉपर मैसेज जो कन्वे किया गया था वो प्रॉपरली समझ में नहीं आया किसी भी वजह से, देन उन सबको कंबाइन करके हम क्या देते हैं? नॉइज. क्या कहते हैं? Noise. यस. यहां तक क्लियर? Yes, sir. Now tell me, how or why is communication important?
Sir, if a manager can't express his thoughts to his employees, employees will never know how they have to function or work and what is their goal. Very good. Anything else? Sir, communication is also needed among employees to, sir, maintain balance, and also, sir, they aren't doing same kind of work. Right. Okay. So first point is basis of decision making. The main task of managers is to take decisions. Now, in order to take decisions, you need to gather information that requires communication. Then you need to analyze that information, for which you may need help of some other people. Again, that requires communication. Once the decisions have been taken, you need to convey those decisions to your team members. Again, that requires communication. So communication is the basis of decision making. Helps in smooth working. Only when decisions and plans are communicated properly to all the employees in the organization at all the levels, they can work upon those plans. They can carry on the instructions given to them. Okay, so it is very important for smooth working in an organization. Communication is a basis of coordination. You remember we took two examples of coordination. One was March past, another was an orchestra. Sir, yes, sir. ठीक है, मार्च पास्ट में अगर ड्रम बजना बीच में बंद हो जाए तो क्या होगा? Sir, everyone will lose their rhythm and they will step differently. कोऑर्डिनेशन इमीडिएटली बिगड़ जाएगी. सिमिलरली ऑर्केस्ट्रा में जो बीट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, ड्रम, ये अगर बीच में बंद हो जाएं तो उनकी भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगी. तो कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. ठीक है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन बंद हो जाए तो पता ही, जिनका काम इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे ने, सपोज एक प्रोसेस है जिसमें 3 लोगों का काम इन्वॉल्व है. A completes the task, then B will take it over, then C will take it over. B को जब तक पता नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं मिलेगा कि A ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है या नहीं, वो कैसे शुरू करेगा अपना काम. तो कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल है विदाउट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. Then communication increases managerial efficiency. मैनेजर्स को बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स लेनी होती हैं ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए. ठीक है, प्लस एम्प्लॉयज की सजेशंस भी आती हैं उनके पास कम्युनिकेशन के थ्रू. अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैनेजर्स कुछ भी काम एफिशिएंटली नहीं कर सकते. ना वो डिसीजंस ले सकते हैं अच्छे से, ना वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. बूस्ट्स मोरल एंड मोटिवेशन. किसका मोरल एंड मोटिवेशन बूस्ट करता है? Sir, employees' motivation has to be boosted by the managers. Yes. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट कैसे होंगे? उन्हें एंकरेज करने के लिए आपको एंकरेजिंग वर्ड्स तो बोलने पड़ेंगे ना, तभी वो एंकरेज होंगे, तभी मोटिवेट होंगे. प्लस अगर आप उन्हें बताओगे ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, दे विल बी टोटली कंफ्यूज्ड एंड डीमोटिवेटेड. ठीक है. देन इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस. बहुत सारी जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, झगड़े होते हैं, उनका, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, एम्प्लॉइज के बीच में, चाहे वो घरों में हो, फैमिली मेंबर्स के बीच में, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, बहुत बार उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कम्युनिकेशन गैप. जब कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, आपको किसी ने आके बताया कि आपका फ्रेंड आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा था. ठीक है, अब आपको गुस्सा आ गया सुन के. आपने कहा अच्छा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा.
बिना फैक्ट पता किए आपने उससे बात करनी बंद कर दी या कम कर दी, और उसे बताया भी नहीं कि आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तो धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी रिलेशनशिप ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी अगर ऐसा रिपीटेडली होता रहेगा। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? जब भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले, हमेशा क्रॉस चेक करो। आप इमीडिएटली अपने फ्रेंड से बात करो कि भाई मुझे ऐसा पता चला कि तुमने ऐसा कहा है मेरे बारे में, इज इट ट्रू? अगर उसने कहा होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा क्यों कहा, क्या रीजन है। हो सकता है बात आपको समझ में आ जाए और वो ठीक हो, या ये भी हो सकता है कि वो कहे मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, और जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी है आपको पता चले उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, जस्ट आप दोनों में कंफ्लिक्ट पैदा करने के लिए, कंफ्लिक्ट करवाने के लिए। सो कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए कभी। जब भी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, कुछ भी आपके मन में डाउट हो, हमेशा क्लियरली कम्युनिकेट करके उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए बात को, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे कोलीग्स के साथ हो, चाहे सीनियर्स के साथ हो, किसी के साथ भी ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू बात डिस्कस करके उसे क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स स्पॉइल रिलेशनशिप्स, ठीक है? So with effective communication, there is no communication gap, hence no misunderstandings and no conflicts. Clear? Yes, sir. Next is establishes effective leadership. Can you imagine a leader who does not communicate? Yes, sir. How? बिना कम्युनिकेशन के लीडर कैसे हो सकता है? Sir, Hitler. हिटलर कम्युनिकेट नहीं करता था? Sir, when he in the World War II, sir, he didn't ask his generals who were on the ground while strategically planning. So it was one of the main reasons he lost the war from a very, he had a chance to win the war, but he didn't listen to his generals, and that's why he lost the war. But did he pass on his instructions to them or not? So he did. He did. So some communication was taking place, ठीक है? Communication पूरी Yes. तरह से बंद तो नहीं था, Yes, sir. ठीक है? तो some communication was there. Yes, he was not a good leader. Why he was not a good leader? Because of the fact you stated, क्योंकि वो डिक्टेटर था, ऑटोक्रेटिक स्टाइल था लीडरशिप का। तो ऑटोक्रेटिक लीडर्स आर नेवर गुड लीडर्स, ठीक है? सो फॉर गुड लीडरशिप टू वे कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, कि दोनों तरफ की बात डिस्कस, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए टू वे कम्युनिकेशन एसेंशियल है, कि आप अपनी बात कहो लेकिन उससे पहले जरूरी है सामने वालों की बात सुनो, डिस्कस करो, सबसे डिस्कस करके, कंसल्ट करके, उनकी सजेशंस लेके फिर आप डिसीजंस लो। अगर ऐसा होता तो ही माइट हैव बीन अ वेरी गुड लीडर, ठीक है? सो कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर leadership. Without communication, leadership is not possible at all. Clear? Yes, sir. Now we come to types of communication. हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कौन सी होती है? So formal organizations are so like MNCs and big companies. Big or small does not matter. Even a small organization is a formal organization. So formal organization is basically the official organization, ठीक है? And informal is the social groups, network of social groups that get formed within the formal organization as a result of social interaction of the employees. Similarly, communication is also of two types, formal and informal communication.
Now you have to be very careful. Do not mix up formal and formal in organization with formal and informal communication. Although the basis is same, formal means official, informal means unofficial. दोनों में बेसिस सेम है, कुछ कुछ पॉइंट्स भी फीचर्स भी सेम होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट भी होंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आए फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे और आप कम्युनिकेशन वाले पॉइंट्स लिख दो, या क्वेश्चन में बात हो रही हो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की और आप ऑर्गेनाइजेशन वाली बात लिख दो. ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का. फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल मैसेजेस थ्रू द चेन ऑफ कमांड, थ्रू द स्केलर चेन. क्लियर? Yes, sir. Features of formal communication. It takes place through scalar chain. क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है तो वो स्केलर चेन के थ्रू चलेगा. सेकेंड, सच कम्युनिकेशन इज जनरली वेल प्लान्ड. जब भी ऑफिशियली आपको कुछ कम्युनिकेट करना होता है किसी को भी, चाहे आप सुपीरियर हो सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे आप सबॉर्डिनेट हो सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे आप अपने सेम लेवल के एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, कि कहीं कुछ गलत ना बोल दिया जाए, कहीं कुछ गलत ना लिख दिया जाए. सो जनरली इट इज वेल थॉट, वेल प्लान्ड बिकॉज इट इज ऑफिशियल. थर्ड, important instructions, important message in official communication is generally in writing. जो रूटीन की का कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, वो तो वर्बली चलती रहती हैं ऑफिशियल में भी, लेकिन जहां भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जिसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, देन जनरली इट इज इन राइटिंग. इट फ्लोज इन वेरियस डायरेक्शंस. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब वन लेवल टू अनदर लेवल एट द सेम लेवल, one person to another person at the same level. For example, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की मीटिंग हो रही है, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सब मीटिंग में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कुछ, तो ये सब सेम लेवल के मैनेजर्स हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं. तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जांपल. या सपोज एक 5 वर्कर्स की टीम है जो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके सुपरवाइजर ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, अब वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन क्या और कैसे करेगा. आपस में जब डिस्कस कर रहे हैं सेम लेवल के एम्प्लॉइज, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ठीक है. वर्टिकल कैसा होता है, अप डाउन या डाउन अप. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 तरह का हो सकता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड. डाउनवर्ड क्या होगा, मैसेज फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स. फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर और अ सुपीरियर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स, passing on decisions to the subordinates, appreciating the good work of subordinates. These are examples of downward communication. Can you give me examples of upward communication? Sir, an employee complaining to his manager about the work conditions or something. Very good. Complaints, grievances, suggestions, appeals, reports given by employees to their superiors. Then comes informal communication. Communication among people regarding personal or social matters where the subject matter is not official. ठीक है, आप ऑफिस पहुंचे, आपने हेलो की, सबसे हालचाल पूछा अपने कोलीग से, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. लंच ब्रेक में बैठ के आपने बातें की कि भाई क्या क्या आपका कोई पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में क्या क्या हुआ, कोई मूवी डिस्कस कर ली, कोई पॉलिटिकल इशू डिस्कस कर लिया. ऑल दीज आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. The main criteria is the subject matter is not official, it is unofficial. ठीक है. एंड इसमें कोई कम्युनिकेशन चैनल की भी रिजिडिटी नहीं होती कि स्केलर चेन के थ्रू ही होना है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो कभी भी कोई भी किसी के साथ कर सकता है. ठीक है. तो इसके फीचर्स क्या हुए,
First feature does not follow the scalar chain of command. Social interaction, personal interaction, कोई chain of command नहीं है उसमें. Anyone can speak with anyone. It represents spontaneous expression of ideas and reactions. फॉर्मल में हमने कहा था वेल प्लान्ड, वेल थॉट. आपको पता है ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहे हो कोई बात तो जनरली ज्यादा सोच समझ के प्लान करके कम्युनिकेशन होता है. बट व्हेन पीपल आर कम्युनिकेटिंग इनफॉर्मली, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं, कोई सोशल मैटर पे बात कर रहे हैं, तो उतना वेल थॉट जनरली नहीं होता. होना चाहिए तब भी, लेकिन नहीं होता जनरली. बहुत बार स्पॉन्टेनियसली जो इमीडिएटली माइंड में आया कह दिया, that is spontaneous. Clear? It coexists with the formal communication. ऐसा नहीं है कि formal communication कहीं और होता है, informal कहीं और होता है, दोनों साथ साथ होते हैं. और कई बार दोनों एक ही टाइम पर भी हो जाते हैं. सपोज आपने एक ऑफिशियल मैसेज किसी कोलीग को पास ऑन करना है, आप गए उसके पास, जाके आपने पहले तो हालचाल पूछा, ठीक है, उसकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी, आपको पता है पिछले कुछ दिनों में आपने हालचाल पूछा तबीयत कैसी है, आप ठीक फील कर रहे हो, यहां तक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया. उसके बाद जो आपने ऑफिशियल मैसेज देना था आपने वो दिया, तो इमीडिएटली फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया. सो बोथ को एग्जिस्ट. क्लियर? Yes, sir. Any doubt up to here? No, sir. Okay, we stop here for today. Anyone Thank you, having sir. any doubt can click on raise hand. Okay, thank you.